friends, today we are meeting here. First of all, welcome to all my YouTube channel. And today I am presenting you with my special guest, my friend, and one of my collaborator. So first of all, let me give the introduction of my guest. He is Mr. Lakhvinder Singh, who is a yoga teacher and researcher in yogic science, who has been conducting yoga therapy session for soldiers for the past 5 years and contributing towards their physical, mental, and emotional well-being. He has done Bachelor of Engineering and Master of Science in Yoga, and his research interest lies in integrating yoga, mental health, and sleep science. So let's discuss yoga from both a scientific and experimental perspectives. So friends, this is a short introduction of my friend, Mr. Lakhvinder Singh. So though we are professionals, I am also doing PhD from IIT Mandi, and you all know me, and I have given introduction of my friend. We will try to be very optimistic towards our discussion. Our topic will be understanding yogic science with Lakhvinder Singh. As our guest is Lakhvinder Singh, that's why our topic relates to him. So we will come to know what his experience about yoga and what is yoga is all about and what other things happens in our daily life, because in recent time International Yoga Day is also celebrated. So we will come to know what is the importance of Yoga Day from Lakhvinder, and we will try to understand what are the programs of government and other organizations towards the development of yoga. So today's our discussion will be totally around yogic science or the yoga science that will be more highlighted by Mr. Lakhvinder ji. So please welcome Mr. Lakhvinder with big round of applause. So let's start the discussion with Lakhvinder ji. So Lakhvinder ji, please, now stage is over to you. And welcome to my Namaskar. YouTube channel. Thank you, Yugl. I'm very glad that we are here finally, and we are going to discuss about yogic science. So, yeah, I would like to thank our listeners also that they are here to listen to us. You can be a bit louder. तो आप yeah, okay, sure. तो आप बात रखें कुछ if like Yes, in which definitely. direction we can take this. Yeah. Direction. You can give also some your memories related to yoga. That thing also. Okay, like my experience. Yeah. So, देखिए, for me, it was very personal experience first. During my after my college, during my college years, I started doing some meditation, and then I got into dhyan, like meditation and all. So I got really थोड़ा एक फील हुआ कि कुछ लाइफ में एक कंसंट्रेशन आ रहा है वट एवर आई एम गोइंग टूवर्ड्स, तो उसमें हेल्प कर रहा है योगा। जो भी आसनास तो मैं अभी नहीं शुरू किए थे मैंने, See, तब तब मैं ध्यान कर। I was reading your introduction. I saw that you did Bachelor of Engineering, and then you या did Masters in yoga. So engineering हम्म is also in yoga, or you moved from नो नो engineering इट to yoga? या इट इज या So इट what वाज would you like to say मैकेनिकल about it? इंजीनियरिंग। Yeah. It was mechanical engineering Okay. from Army Institute of Technology, Pune. Hmm. University of Pune has a one college, Hmm. Army Institute of Technology. So from there, as I said, I was in college. I was doing some ध्यान practice because of my spiritual guru. Hmm. तो वो ध्यान के अभ्यास से मुझे महसूस होने लगा कि देर इज लॉट टू एक्सप्लोर बियॉन्ड बॉडी, लाइक देर इज समथिंग विच इज लाइक जैसे हमारा एक थिंकिंग माइंड है, थिंकिंग बॉडी है कह लीजिए। Hmm. तो मुझे लगा कि उसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हम करना कुछ चाहते हैं पर बहुत सारे थॉट्स में हम इधर उधर भी भटक जाते हैं। वी सही बात. वी गॉट डिस्ट्रैक्टेड You're right. मोस्टली। और कॉलेज लाइफ में ये ज़्यादा फील कर पाया मैं कि अगर इस पे मैंने ध्यान काम कर दिया, इफ आई एम एबल टू वर्क ऑन इट, कि एक डायरेक्शन में मैं जा पाऊँ, एक फ्लो बना पाऊँ, स्ट्रीम लाइन अपने थॉट्स का, तो आई Hmm. कैन अचीव समथिंग। Hmm. तो मैंने वो ध्यान का जब प्रैक्टिस शुरू किया तो इट हेल्प मी अलॉट। सो फ्रॉम देयर इट वेंट टूवर्ड्स इंक्विजिटिवनेस ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द योगिक साइंस क्या है, हाउ इट इज रिटन इन एंशियंट टेक्स्ट। फिर मैंने कोर्सेज किए, जैसे मैंने आपने बताया वहाँ पर कि मास्टर ऑफ साइंस इन योगा भी उसका पार्ट था। Yeah. तो फिर वो कोर्स किए, और कुछ टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी होते हैं व्हेन वी गो देयर एंड लिव फॉर मंथ। और जैसे मैसूर में
इंडिया योगम एक करके है, वहां पर मैंने अष्टांग विन्यासा कोर्स किया। तो इस तरह से मतलब ये जर्नी लंबी है, पर हाँ, फिर हम लौट कर अगर आए कि योगिक साइंस का क्या पॉइंट है जी। You mentioned about your Guruji. So I think I would like to know who was your Guruji and what was his influence on you. That's why you have almost more than 5 years in yoga science, and you are teaching soldiers. So which is itself a great task. यस। So let's talk सो about your Guruji as well. यस यस, श्योर श्योर। सो माय गुरुजी is श्री आशुतोष महाराज जी। सो आई टुक ज्ञान फ्रॉम देयर। So as I said, in the college time, I felt कि ध्यान की ध्यान was helping me. This meditation was helping me because too much of thought. आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, पर बहुत कुछ सही एक दिशा में करना होगा for a longer time, then only you will achieve something. Hmm. That way meditation helped me. And for like later on I have explored more कि क्या है योगा, आसनास क्या है, प्राणायाम क्या है, and then how we can go further in ध्यान। तो नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रिसर्च वर्क। मैंने अभी एक रिसर्च भी किया सोल्जर्स के साथ, कारगिल में हाई एल्टीट्यूड एरिया में, ऑन देयर लंग कैपेसिटी, कि हाउ प्राणायामा एंड आसना कैन हेल्प इन द इनहेंसिंग द लंग कैपेसिटी ऑफ सोल्जर्स एट हाई एल्टीट्यूड एरिया। बिकॉज आप जानते हैं हाई एल्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिया होता है। तो Hmm. उस एरिया में लंग्स अगर ज़्यादा फंक्शनल हो, अच्छे से पल्मोनरी फंक्शन अच्छा हो, तो Hmm. इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर लाइक जो भी वहाँ पे रह रहे हैं उस एरियाज में, तो फौजियों के लिए तो और ज़्यादा So काम आएगा hypoxia ये। is a state. आपने hypoxia बताया. What is that? I don't know about it. हाँ, तो हाइपोक्सिया इज सिंपली युगल, जहाँ पे हाइपोक्सिया इज लेस ऑफ ऑक्सीजन, हाइपो Okay. लेस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है एटमॉस्फेयर में, तो Hmm. आप इनहेल उतना ही कर रहे हैं, सेम लीटर ऑफ एक बार में इनटेक ले रहे हैं, फिर भी आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो देन व्हेन ऑक्सीजन रीचेस लेस टू द टिश्यूज, Hmm. तो आपको फिर क्रैम्प आना, इवन Okay. बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इवन फटीग जल्दी होगा, और आपको नींद के डिस्टरबेंसेस, स्लीप डिस्टरबेंसेस भी होंगे। तो उस तरफ योगा हेल्प कर रहा है जी। Okay. So rightly said. So you have shared some questions with me. So let's discuss the question that you have shared with me. I will ask the question and you will give your elaboration on those particular questions. So let me read the questions for you. Yoga and science, are they really connected? So what is your perspective about this yoga and science? Yeah, because this question arises from when we listen to people nearby, they say no कि योगा अलग है, साइंस अलग है। एक्चुअली मैं कैसे देख पाता हूँ कि फिनोमेना, जो भी फिनोमेना घटित हो रहा है आसपास, उसको जब एक्सप्लोर करते हैं तो वो जैसे कि सेब गिर रहा है जमीन पर, तो क्यों गिर रहा होगा, द क्वेश्चन इज क्यों गिर रहा होगा। तो Hmm. सिमिलरली उसको खोजते खोजते आप साइंटिफिक अप्रोच में निकालते हैं, और फिर आप फाइंड आउट करते हैं देर इज मस्ट बी सम लॉ बिहाइंड इट, एंड लॉ, Yes. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एंड देन यू जनरलाइज थिंग्स, एंड देन यू टेक इट टू द एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी बनाते हैं आप। तो सिमिलरली योगा में कुछ चीज़ें हेल्प कर रही हैं लोगों को। Okay. हम इसको में थोड़ा रिवर्स भी देख सकते हैं, जैसे सेब गिर रहा था, वैसे Hmm. ही लोगों को योगा हेल्प कर रहा है। बिकॉज Okay. कैसे कर रहा है, तो बड़ा एग्जांपल कैसे लें, 177 कंट्रीज ने, जब से आपने पीछे योगा डे की बात की थी ना, Hmm. 177 कंट्रीज ने सपोर्टेड और को स्पॉन्सर्ड द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेरेशन। Definitely. Yes. ये 2014 दिसंबर में जो हुआ था, Hmm. फिर उसके बाद 2015 से इट स्टार्टेड, 21 जून से। तो Hmm. अब एक बात हुई कि लोगों को हेल्प कर रहा है। जब Okay. हेल्प कर रहा है तो कैसे हेल्प कर रहा है, ऐसा क्या एंशियंट टेक्स्ट में लिखा गया है, बिकॉज ऑफ इट, इट इज हेल्पिंग। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हेल्प होता है, जैसे मैंने कहा मेरी लाइफ में ध्यान ने मुझे हेल्प किया एक जगह, मेंटल। तो उसके भी साइंटिस्ट्स हैं Hmm. जिन्होंने योगा पे बात कही है। जैसे Hmm. पतंजलि एक, महर्षि पतंजलि एक महर्षि साइंटिस्ट है। पतंजलि। हाँ, जैसे ये सेजेस भी ना साइंटिस्ट, अब कैसे हैं तो वो उस पर मैं बात रखना चाह रहा हूँ। ठीक जैसे है। वो कहते हैं, हम्म। जैसे हमारी मेंटल फ्लक्चुएशंस हैं, हम्म। तो मेंटल फ्लक्चुएशंस है, माइंड यहाँ वहाँ भागता है, विचार जाते हैं। तो हम्म। उनको स्ट्रीमलाइन करने को वो कह रहे हैं कि योग है चित्तस्य वृत्ति निरोध। योग जो ओके। है वो फ्लक्चुएशन को एक डायरेक्शन में ले जाएगा, ओके। उनको स्ट्रीमलाइन करेगा। हम्म। खैर ये एक बात है, जैसे और भी वी कैन या। ठीक है। तो मतलब अगर कुल मिला के कहें इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में, तो योगा एंड साइंस दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर। हाँ, या
साइंस इज टू एक्सप्लोर, और योगा, इफ योगा इज हेल्पिंग पीपल, लेट अस एक्सप्लोर इट। ये क्या So, एक्सप्लोर हेल्प कर so रहा है? now let's move on to our second question. This question says yoga and well-being in today's world. I mean, what is the perspective of yoga and well-being in today's world? देखिए, आज के वर्ल्ड में क्या पर्सपेक्टिव है, एज आई सेड, कि लोग अभी के टाइम में देर इज लॉट ऑफ टू मच ऑफ सोशल मीडिया, वी आर टू मच ऑफ डेल्व इनटू सोशल मीडिया। दिन भर मोबाइल पर बैठना, या कह लें ये मॉडर्न डेज चैलेंजेस हैं। वी Hmm. कैन से कि मोबाइल एडिक्शन एक हिस्सा हो चुका है, Exactly. डिजिटल ओवरलोड हो गया है, Hmm. लाइफ में ओवरलोड हो गया है। एक तो बिकॉज ऑफ वर्क ऑल्सो पीपल आर ऑन कंप्यूटर्स, और बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो पीपल आर ऑन कंप्यूटर और Definitely. मोबाइल। Definitely. तो एक एक डिजिटल ओवरलोड है, ठीक है। और इससे हमने, साइंस ने भी ये बात रखी है कि लाइट और इसका जब आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट आता है, इवन रात में भी, तो डोपामाइन रिलीज नहीं होता है। Hmm. इट डिस्टर्ब्स आर स्लीप, स्लीप Definitely. डिस्टर्बेंसेस आते हैं। Hmm. स्लीप डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो नींद हमारी खराब होती है। Hmm. नींद खराब होगी तो फिर रिकवरी अच्छी नहीं होगी। तो Hmm. वो जो चिक 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 चल रहा है ब्रेन Disturbance. में, या कह लें माइंड में Hmm. डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, Hmm. तो वहां पर योगा आपको रिलैक्स करता है, डिटैच करता है। Hmm. बिकॉज वेन यू आर गोइंग टू स्लीप, एक एग्जाम्पल है, तो Hmm. आप थॉट लेकर स्लीप कर जाएंगे, सोने जाएंगे, तो फिर Hmm. आप उठेंगे भी उसी थॉट के साथ, और वही थॉट आपके अंडरनीथ करंट की तरह चलता रहेगा। Hmm. आप Hmm. बहुत अटैच हैं उस बात से। Yes, definitely. तो वो डिटैचमेंट भी दे रहा है आपको Hmm. प्रैक्टिस से, कि Hmm. ठीक है, एक टाइमिंग होनी चाहिए कि आपने ये काम किया, अब उससे डिटैच हुए। सेल्फ सस्टेन भी कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंट भी बनाता है, कि आप I अपने mean, आप में खुश हैं, फील कर तो रहे हैं एक, आप हाँ यहाँ जी। पे ये कहना चाहते हैं कि जैसे आज की जो लाइफ है स्ट्रेसफुल है, काफी काफी हेक्टिक भी जी है, और जी पॉल्यूशन भी काफी है। तो इन पर्सपेक्टिव जी। को देखते हुए योगा की जो रेलेवेंस है वो और ज्यादा इंप्रूव हो गई है और ज्यादा बढ़ गई है, आप ये कहना चाहते हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप देखिए ना कि हमारा जो बॉडी है और ब्रेन है, हैं? उन दोनों का जो कनेक्शन है, हम्म। उसको ये बेहतर करता हम्म। है। फॉर एन एग्जाम्पल, आसनास की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो हम्म। आपके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाती हैं। तो अच्छा। न्यूरॉन्स के साथ जो हमारा, तो जो हमारा कनेक्शन है वो इम्प्रूव होगा, तो हमारी मूवमेंट में वो हेल्प करता है, वो हमारी रिफ्लेक्सेस में हेल्प करता है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। हम्म। दूसरा बात आप देखिए कि आप एक ना डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है, जैसे ओके। आप ब्रेन के बारे में जब कॉग्निटिव साइंस में पढ़ते हैं, हम्म। तो जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, जब शांत हम्म। बैठे होते हैं, मान लीजिए मैं फ्री हो गया अभी, अब आजकल तो जल्दी फ्री ही नहीं हो रहे लोग, मोबाइल उठा लेते हैं तुरंत। मान लीजिए मैं राइट। फ्री बैठा हूँ ऐसे, हम्म। जब मैं फ्री बैठा हूँ तब भी मेरे थॉट चल रहे होते हैं, हम्म। और कभी कभी किसी किसी के ज्यादा चल रहे होते हैं। ज्यादा मतलब चल। ये डिपेंड करता है कि क्या पर्सनल लाइफ कैसे जी रहे हैं वो लोग। हम्म। तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डिफॉल्ट मोड। ब्रेन के। हाँ, तो डीएम पीएफसी है, डॉर्सी मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, हमारा पीसीसी है, हम्म। पैराइटल सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, हम्म। प्रीक्यूनियस करके एक एरिया है, और एंगुलर जाइरस है। ये हम्म। सब आपस में बहुत तेजी से कनेक्ट हो रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ये वो विचार रहते हैं ये, कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो मुझे ऐसे क्यों देखता है, वो मेरे को प्रोजेक्ट करने में ऐसे क्यों नहीं हेल्प करता है, ये सब विचार बहुत ज्यादा चलते हैं ये। तो ये हम्म। क्या करते हैं, आपको मोमेंट में नहीं रहने देते। ओके। ये आपको मोमेंट में नहीं रहने देते। मोमेंट क्या था, आप या तो रेस्ट करने जा रहे थे, हम्म। मोमेंट ये था, या तो फिर आप इस रेस्ट के बाद अपना कुछ प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे, पर आप दाएं बाएं की बातों में फंस जाते हैं, एंड ओके। इट इज नॉट इंटर योर कंट्रोल। तो मैं योगा की आप हेल्प क्या होती है वो मैं बताता हूँ। तो आईआईटी दिल्ली ने एक रिसर्च किया, हम्म। एफएमआरआई डेटा लिया, किनका, जो मेडिटेटर्स थे, रेगुलर मेडिटेशंस करते थे उनका, और जो नोवाइसेस थे, जो योगा से नहीं जुड़े थे। तो हम्म। जो इन लोगों को दोनों को योग निद्रा कराई गई, हम्म। तकरीबन एक महीने, और योग निद्रा दोनों का करा के जब एफएमआरआई लिया गया, तो देखा गया बिफोर एंड आफ्टर में, प्री पोस्ट डेटा कलेक्शन हुआ, देखा गया डीएमएन नेटवर्क जो था वो डिकपल हुआ, रिड्यूस हुआ, मेडिटेटर्स में बहुत कम हुआ। ओके। नोवाइसेस में भी असर पड़ा, पर हम्म। वहां पर उनके ऊपर कम पड़ा। हम्म। तो जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं, और जब उनको इस तरह के हम प्रैक्टिसेस से गुजारेंगे, जैसे कि योग निद्रा मैंने कहा, तो हम्म। हमारी मन के फ्यूचर और पास्ट, या सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग, इन सब से हम हटकर प्रेजेंट में अवेलेबल होना सीख पाएंगे। तो ये हेल्प कर रहा है योगा, और जितना हम प्रेजेंट में अवेलेबल होंगे, हम परफॉर्म करेंगे अच्छा जी।
आई थिंक ये आपने सेकंड क्वेश्चन को काफी अच्छे से elaborate किया. अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर थर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी मच रेलिवेंट टू अवर टुडेज पर्सपेक्टिव. Question is, जी। ancient text like Vedas, Bhagavad Gita, and modern research, where do they meet? So it's a very good question for you. Yeah. Ancient texts like या Veda, Bhagavad Gita, and modern research, where do they meet? या सो आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दीज थिंग्स बिकॉज ये थोड़ा सा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ। Hmm. जैसे मेरे को एक भगवत गीता का ना एक श्लोक है, वो बहुत मतलब वहां से मैं कोशिश करता हूँ कि उससे हम कनेक्ट कर पाए। Hmm. तो उसमें कहते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, मतलब ही सेड, ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, Hmm. संगः संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। Hmm. आगे फिर दो दो लाइनें और हैं, मतलब एक श्लोक और है, पर मैं यहाँ तक रुक कर बताता हूँ। तो वो Hmm. कह रहे हैं कि आप किसी विषय का, किसी वस्तु, पर्सन या किसी भी विचार में लाएंगे अगर, जो इंद्रियों से ग्राह्य है, अच्छी, जिस, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति, चलिए हम ऐसे ले लेते हैं, कॉलेज में कोई लड़का है, किसी लड़की के बारे में विचार कर रहा है और बार बार विचार कर रहा है, भले वो मतलब मान लीजिए कि वो विचार एक तरफा हो, बस यूं ही विचार आ जाता है कि यार उसने मुझे देखा, वो कितनी अच्छी है, जैसे इनिशियल डेज ऑफ कॉलेज कई लाइफ में होता रिसर्चर्स है। इसको टेलीपैथी भी बोलते हैं. कई सारे रिसर्चर्स इसको टेलीपैथी भी कहते हैं. हम जरूरी नहीं है किसी भी एक्स या वाई या जेड के बारे में हम जो विचार करते हैं उसको हाँ हाँ। मेंटल टेलीपैथी भी कहा जाता है. कई रिसर्चर्स ये भी इस चीज को टेलीपैथी भी कहते हैं. ओके। तो यहाँ पर मैं कैसे रख रहा था, तो हम जब विचार को ज्यादा करेंगे तो हम्म. उससे हमारा अटैचमेंट बन जाएगा उस हम्म. विषय से, जो हम्म. भी जिसका भी विचार हुआ, वस्तु, हम्म. व्यक्ति, उसके हम्म. हमारा अटैचमेंट बनेगा। वो हम्म. अटैचमेंट क्या करेगा, संगस्तेश उपजायते, संग बन जाएगा, हम्म. फिर उससे कामना बनेगी उसको ओके. पाने की। मान लीजिए यहाँ पे इच्छा है कि ये मैं यहाँ एडमिशन पालूं, मैं उस व्यक्ति को पालूं, ये कामना बनेगी। और उस कामना में कोई जॉब को अवरोध पाने. आएगा तो, हाँ, कोई ऑब्जेक्ट को, कोई पोजीशन को, या किसी व्यक्ति को, तो उस विषय कह दिया गया उसे। तो उसको, अगर उसमें कोई अवरोध आएगा उस मार्ग में, उस कामना को नहीं पाने में, तो क्रोध आएगा। ग्रोथ आएगा. फिर बिल्कुल सही. क्रोध, हाँ हाँ, तो फिर कहते हैं कि क्रोधो भवति सम्मोहः, हम्म. सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, अच्छा, यहाँ स्मृति पे एक भ्रंशात्। एक क्रॉस क्वेश्चन निकल के आ रहा है मेरे दिमाग में. जी क्वेश्चन का पैटर्न तो है ही, लेकिन क्रॉस, जैसे आपने श्लोकों को बड़ी सुंदरता से बोला, तो जैसे श्लोकों को याद करने की क्या विधि है और कैसे श्लोकों को लंबे समय तक याद रखा जाए, क्योंकि आपने तीन चार श्लोक बहुत अच्छे तरीके से बोले. तो मैं आपसे इस चीज को जानना चाहूंगा. ये एक तरीके से क्रॉस क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया. जी जी जी, श्योर श्योर यूली। तो श्लोक याद करने के लिए क्या कहूँ, मतलब आप, अनुभव होता है आपको कोई चीज़, जैसे आपने अभी क्या कहा कि हाँ, विषय से आप कनेक्ट करोगे तो आपका उसमें अटैचमेंट आएगा, अटैचमेंट अगर नहीं पूरा हुआ तो क्रोध आएगा, तो आप समझ गए बात को। समझ गया. तो हम मतलब जब कहीं ना कहीं समझें, प्रैक्टिस करना जब आप पड़ेगा. समझेंगे, जब हाँ. आप समझेंगे हाँ. तो आपको याद हो जाएगा श्लोक। बात बिल्कुल. को अब, ऑब्वियसली ना, आप जब, ऑब्वियसली. जैसे ऑब्वियसली. कि कोई कविता कब हम कनेक्ट कर पाते हैं, जो हम्म. आदमी इश्क में होता है उसे इश्क के गाने याद हो जाते हैं, जो जो क्रोध में होता है उसे रिवेंज के कोई गाने याद हो जाते होंगे, कोई रैप याद हो जाता होगा। सही तो बात. जिस भावना को आप समझ पाए हैं समझ वही याद पाए हो पाएगा। वो याद हो जाए. ठीक है. हाँ, तो रिटर्निंग टू देयर, कि अब जो यहाँ पे हमने कहा ना कि, तो इसी बात को ना योग कैसे देख रहा है, सॉरी, साइंस कैसे देख रही है, जो भगवान कृष्ण ने कहा मेंटल फ्लक्चुएशंस हैं, हम हम्म. कैसे कनेक्ट कर जाते हैं किसी से, और फिर तो कॉग्निटिव कॉग्निटिव डिफ्यूजन एक वर्ड होता है, कॉग्निटिव डिफ्यूजन, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। हम्म. मतलब आपने कॉग्निशन अपना लगाया था कुछ वर्क करने के लिए, पर आप डिस्टॉर्ट हो गए, हम्म. क्योंकि आपका ध्यान कहीं किसी विषय में अटक गया है, विषय किसी वस्तु में, और हम्म. आपके अंदर वो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो हम्म. आप समझ पा रहे हैं कि समझ गया. डे टू डे लाइफ में योगिक साइंस क्या कर सकती है, कि आपको एक फोकस्ड ह्यूमन बीइंग, जैसे कि अर्जुन, अर्जुन हम्म. क्या है अभी, इस इमोशन में जा रहे हैं ना कि यार ये तो मेरे अपनी फैमिली है, इनको कैसे मैं मार सकता हूँ, ये तो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे गुरुजन रहे हैं। तो वो हम्म. कह रहे हैं नहीं, ये इमोशनल तुम जो ट्रैप में आ रहे हो, ये छोड़कर धर्म की ओर बढ़ो। जन्म की ओर. मतलब जो तुम्हारा, हाँ, जो तुम्हारा कार्य है, तो हम्म. ये, अब धर्म तो स्टूडेंट का पढ़ना है, हम्म. स्टूडेंट के लिए पढ़ना है, या रिसर्चर किसी के के लिए, लिए. या किसी देश के सोल्जर के लिए अपने सोल्जर को जहाँ खड़ा है वहां पर अवेलेबल होना है।
अगर वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में होगा तो वो उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा, अपनी फैमिली और कहीं अटैचमेंट्स में होगा। यस। ठीक है। अब हमारे पास में समय की थोड़ी सीमा है, तो हमारे पास में जी करीब जी जी। 5 से 10 मिनट का समय बचा है। तो अंत में हम जो श्योर। जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि अगर हम लंबे समय तक अगर योगा पे चर्चा करें तो एक पूरी जिंदगी योगा पे निकल जाएगी। लेकिन हमें समय की सीमा का भी याद रखना है और उन विषयों को चर्चा करना है जो हमारे दर्शक हैं उनको अच्छा लगे, ऑडियंस को अच्छा लगे। तो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is yoga escapism? And related question, how does a common person starts yoga? Not at all. Not a escapism. Yoga is not a escapism. It's a applied science. Hmm. It can improve your life, your way of thinking, and wherever you are, you can be able to perform well. Because you can see the text of Srimad Bhagavad Gita. I can quote or I can take the reference from there. वहां तो कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ अनरियल है तो देन व्हाई यू आर मेकिंग मी टू डू दीज थिंग्स, व्हाई यू आर मेकिंग मी टू, मतलब चलाने के लिए कह रहे हैं आप धनुष और मारने के लिए कह रहे हैं, मैं चला जाता हूँ ना केव में, लेट मी डू ध्यान। तो Hmm. वो तो कह रहे हैं नहीं नहीं ध्यान नहीं करना है अभी तुम्हें, यू हैव टू डू योर ड्यूटी, कर्म। Correct. तो इट इज नॉट एस्केपिज्म, इट इज नॉट गोइंग इनटू द केव, इट इज बी इन द बैटलफील्ड एंड डू Hmm. योर ड्यूटी। Yeah. तो ये तो बिल्कुल डाउट नहीं है, इट्स अ कर्म योग। Hmm. हाँ, पर कैसे होगा, तो यू शुड अप्लाई योगिक प्रैक्टिसेस, बिकॉज फिजिकली आप अच्छे नहीं हैं, मेंटली आप साउंड नहीं हैं, तो आप क्या कोई अच्छा ड्यूटी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो उसके लिए योगा एक टूल की तरह आपके सामने आता है। फिर आपने दूसरा एक बात रखा, कोई वो दूसरा प्रश्न मैं आपने, अच्छा, बताता कि हूँ कैसे हम खुद से, कैसे इसको या करें। हाँ। हाँ 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 जी जी। हाँ, अगर ये आप समझ पा रहे हैं कि इट इज हेल्पिंग यू, तो हाउ टू स्टार्ट, हम्म। या सिंपली यू कैन जस्ट, देखिए पहली बात तो आपको समझना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या आप हम्म। हेल्दी क्या शरीर चाहते ऑब्जेक्टिव है हैं, आपका? क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। तो हम्म। क्या कोई भी ऑब्जेक्टिव है तो उसमें क्या हेल्प करने वाला है, दिस बॉडी इज द मीडियम, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, हम्म। दिस माइंड एंड ब्रेन इज द मीडियम, हम्म। ये हिस्सा जो है आपका, जो थिंकिंग है, प्रोसेसेस हैं, ये हेल्प करेंगी। तो योगा इसको हेल्प कर रहा है, तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो आप, मेरे को लगता है कि कोई आम बच्चा कोई देख रहा है, कोई सीनियर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक आउट सम टाइम, एटलीस्ट गिव हम्म। 40 मिनट्स टू योर सेल्फ, शट डाउन योर मोबाइल लैपटॉप्स फॉर सम टाइम एंड हम्म। सिट विथ योर सेल्फ। आप अगर कोई, आपने कुछ आसनास, सूक्ष्म व्यायाम, जो जॉइंट ओपनिंग प्रैक्टिसेस, ये सब कहीं वीडियोस में भी देखें तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा है देन यू कैन ज्वाइन सम क्लास, डोंट वेट, ज्वाइन सम क्लास वेदर यू गो फिजिकली और ज्वाइन ऑनलाइन। हम्म। 40 मिनट्स, 50 मिनट्स अगर आप अपने साथ रहोगे तो आप हम्म। बहुत कुछ पाओगे, अपने आप रास्ता बनता जाएगा। तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। अभी हम अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि सबसे कॉमन योगा प्रैक्टिस कौन सी है, या फिर सबसे कॉमन आसन कौन सा है जिससे सबसे ज्यादा लाभ होता हो? जैसे एक तो अनुलोम विलोम मुझे को मालूम है, या फिर हाँ जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ, रिसर्चर हूँ। एक आम नागरिक जो ज्यादा योगा नहीं जानता है, तो कौन सा आसन जी जो जी जी। वो कर सकता है जिससे कि उसको अधिक लाभ हो? ये बड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज पर पता है मैं कैसे देख पाया हूँ इसको। हम्म। आजकल हम चेयर पे बहुत बैठते हैं, सभी लोग, काम में इस अच्छा। तरह का है कि चेयर पे हम्म। बैठना होता है। तो हम्म। हम क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है माला आसन इज वेरी हेल्पफुल। अच्छा। माला आसन क्या है, जो, हम्म। नहीं 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 नहीं, अच्छा। नहीं। अच्छा, ये माला, नहीं। माला इज बॉडी का माला है। बॉली का मालूम। आप ओके। इसकी, इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं, वन हैज टू ओके। सिट ओके। लाइक दैट। ओके। 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 आप आई गॉट समझ इट। गए, समझ गया मैं, पैर समझ। खोलकर हाँ नीचे हाँ बैठना। हाँ हाँ, नीचे क्योंकि बैठ गया। नीचे बैठना हमारा अब क्या, इससे फायदे में थोड़ा रख दूं तो इट विल बी हेल्पफुल, कि हम्म। देखिए आपका पेल्विक फ्लोर ओपन होता है। हम्म। फीमेल के लिए पीसीओडी, पीसीओएस, ये जो समस्याएं आती हैं, पॉलिसिस्ट वगैरह जो हो जाता है, ओवेरियन हम्म। डिसऑर्डर्स, ये सब। हम्म। और मेल में भी कुछ सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं, आती हैं काफ़ी, हम्म। यंगर मेल में भी आने लगी हैं, तो वो एक बात हो गई। प्राणिक फ्लो हमारा बढ़ता है, डायफ्राम ज़्यादा ओपन होता है। जो हम नीचे जब बैठते हैं तो हम्म। ये जो हिस्सा है, आप हम्म। जब ऐसे बैठते हैं ना, मैंने जैसे हम्म। कहा माला आसन में नीचे को, उसे माला आसन कहते हैं। हम्म। तो इंडियन स्क्वाट भी लिखेंगे आप नेट पे तो आप आ जाएंगे। तो अच्छा। इंडियन स्क्वाट में बैठना है, इट विल वेरी हेल्पफुल। आप 2 मिनट बैठिए सुबह, फ्रेश होने से पहले भी बैठ सकते हैं।
अच्छा। क्योंकि ज्यादातर अब वेस्टर्न टॉयलेट में भी लोग जाने लगे। हम्म। तो ये दिस इज गोइंग टू हेल्प इंडियन स्क्वाड, मुझे लगता है ये मैं एक इसको है काफी हद तक खास। समझ पा रहा हूँ, मैंने इस चीज को महसूस भी किया है, और मैं आपकी ओह बात से नाइस कंप्लाई करता हूँ। नाइस तो अब हम अपने आखिरी नाइस। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा। अवर क्वेश्चन इज योर विजन फॉर योगा। आई मीन यू आर a researcher of yoga, so what is your vision and what you think about yoga, your vision for yoga? Yeah, I think yoga is India's gift. It's a gift Okay. to the whole world, to the humanity, even to the, yeah, it is a gift from the creation, from the creator, sorry. So India's gift, but we need to discuss and spread this gift or knowledge in the scientific language, which is the language of today. उसी भाषा में हमें लोगों तक रखना होगा, स्प्रेड करना होगा। वी नीड मोर रिसर्च ऑन इट, वी नीड मोर मतलब टू मेक इट एक्सटर्नल वैलिड, लाइक टू जनरलाइज इट, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन। लाइक ये जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है वो योग से संभव है, क्योंकि वो हमारे अंदर उस तरह का परिवर्तन लाता है। पर रिसर्च से हम उसको थोड़ा पुख्ते तरीके से समझ पाएंगे, देन ओनली वी कैन ब्रिंग इट टू द लाइक एजुकेशन, पढ़ाई में ला पाएंगे, प्रैक्टिस में ला पाएंगे। तो या दिस इज अ या साइंस एंड योगा शुड गो पैरेलली, लाइक दिस इज गोइंग टू हेल्प। ओके, थैंक यू लखविंदर जी, आपने हमें बहुत अच्छा बताया। बस कंक्लूड करने से पहले मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि आप योगा के रिसर्चर हैं और काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं जिनसे हमारे जो ऑडियंस है वो समझ सकें कि गवर्नमेंट इस फील्ड में और क्या कर रही है, जिससे हम इस बात को कंक्लूड कर सकें। मैं ट्राई करता हूँ इस बारे में। देखिए, जैसे सबसे बड़ा तो एक डिपार्टमेंट है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय। आयुर्वेदा, या आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी का जो मंत्रालय है, तो उसमें योगा को बहुत प्रमोट किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया। जैसे इंटरनेशनल डे, योगा डे की वजह से भी कनेक्ट लोग हो थोड़ा गया। वो, या जब मैं सोल्जर्स के पास जाता हूँ तो उस रीजन से भी आर्मी बहुत इंथुजियास्टिक रहती है कि भाई हमें योगा डे मनाना है। तो हम्म। अच्छे से मनाना है, दे बिफोर द 1 मंथ दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। हम्म। और मैं थोड़ा आर्मी से अगर जोड़ पाऊँ, इफ़ यू अलाउ, बिकॉज वहाँ मेरा ज़्यादा समझ रहा है। तो फौजियों के AIPT है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग करके, वहाँ पे आर्मी में योगा का कोर्सेज भी कराए जाते हैं फौजियों के लिए। तो हम्म। वहाँ से नॉलेज स्प्रेड की जा रही है। और हाँ, मुझे जो याद आ रहा है अभी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही शायद हिस्सा है ये। योगा सर्टिफिकेट बोर्ड होता है, या आयुष मंत्रालय के अंडर होता है ये योगा सर्टिफिकेट बोर्ड। एक रेगुलर बॉडी है जो कि 1 मंथ का कोर्स, 2 मंथ का कोर्स करके आप योगा का एग्जाम दे सकते हैं और हम्म। आप ट्रेनर बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि, कह लीजिए कि 10-20 घर हैं, उसके बीच अगर एक भी योगा का जानकार है हम्म। तो वो आसपास हेल्प कर सकता है ना, डेफिनेटली। उनको सुबह प्रैक्टिसेस करा सकता है। तो योगा सर्टिफिकेट बोर्ड एक अच्छा स्कीम है योगा का, जहाँ से लोग जुड़ सकते हैं और बेसिक्स अपनी क्लियर कर सकते हैं और अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट। या ओके। सो लखविंदर जी, थैंक यू सो मच। हमारे पास में थोड़ी समय की सीमा है, नहीं तो हम इस डिस्कशन को और भी लंबा कर सकते हैं, बिकॉज और बाकी हम अपने ऑडियंस को ये बताएं, अगर ये हमारा जो टॉक है सक्सेस जाता है, तो डेफिनेटली इसका जो सेकंड वर्जन है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और यदि आपके कोई सवाल हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने दोस्त और अपने मित्र लखविंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वो योगा साइंस के रिसर्चर हैं, और आपने हमें इतने समय तक सुना, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि जल्द ये वीडियो सक्सेसफुल हो और अगले वीडियो में आपसे डेफिनेटली मुलाकात हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक नमस्ते। यू।